Parliament of India. And my passion has been the service of the people of India. Powerful words, very, very profound and very meaningful. Right in the center, of course, as we said earlier, you can see the Jaipur column designed by Sir Edward Lutyens and was sponsored by Maharaja Madhav Singh of Jaipur. It's made by sandstone topped by the Star of India emerging from a 5-ton bronze lotus and was installed in 1930. भारतीय गणराज्य जिसमें राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। भारत के राष्ट्रपति हालांकि संसद के अंग होते हैं, लेकिन वो दोनों में से किसी भी सदन में ना तो बैठते हैं ना उनकी चर्चाओं में भाग लेते हैं। संसद से संबंधित उन्हें कुछ ऐसे संवैधानिक कृत्य हैं जिनका निर्वहन करना होता है। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के दोनों सदनों को बैठक के लिए आमंत्रित करते हैं और जो बात बार बार कही जाती है, रेखांकित की जाती है, संविधान की रक्षा करना, उसका संरक्षण करना, ये महत्वपूर्ण कर्तव्यों में से एक। और इस पद को ऐसी कई महान विभूतियों ने सुशोभित किया है, जिनमें स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले चुके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, मजदूर नेता, कई ऐसे लोग जो सार्वजनिक जीवन से देश के इस सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचे और जिन्होंने इस महान लोकतंत्र में अपना विशिष्ट योगदान दिया। आज उसी महान लोकतंत्र और देश का ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव, जहां एक राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो रहा है और शुरू हो रहा है नए राष्ट्रपति का कार्यकाल। A question that often comes up in today's world of quick turnaround times and task and delivery orientation, what is the role of traditional ceremonies and protocol? Well, history, tradition, ceremonial protocol, all have a way of giving context, of anchoring the present in a stability that has weathered many storms. Institutions need to be nurtured organically, keeping the present in mind. They go beyond the individual, and that's the reason tenures and terms are linked to people, not institutions. In fact, a healthy democracy rests on transitions of people, parties, and power. The seamlessness, constitutional nature, and dignity of these transitions only serve to strengthen democracy. राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल कई दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उनके कार्यकाल के 2 वर्ष उन्होंने पिछली सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ काम किया और उसके बाद सन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार जब आई, तब से उनके साथ उनके कार्य को लेकर और उनकी कार्यशैली को लेकर दोनों में जो विशेष सौहार्द है वो कई बार प्रकट हुआ है, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की ओर से भी और प्रधानमंत्री के शब्दों में भी। So here we are, the wonderfully attired President's bodyguards. A little bit about them. The personnel of the regiment are handpicked, all of them at least 6 feet tall. Besides performing ceremonial duties for the President, the officers and men are also trained horsemen, paratroopers and tankmen. The regiment is seen in action in Chushul in 1962, in the Western Theatre in 1965, and in Operation Pavan, Sri Lanka in 1988. In fact, the men of the bodyguards have also distinguished themselves on United Nations duties in Somalia, Angola and Sierra Leone.
A detachment also serves in Siachen Glacier, the highest and coldest battlefield in the world. धीरे धीरे काफिला सीना पहाड़ी से उतरकर विजय चौक से मुड़कर संसद भवन के गेट नंबर 5 की ओर बढ़ता हुआ, जहां इनकी अगवानी के लिए इसमें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, उनकी अगवानी के लिए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्ति वहां उपस्थित होंगे। In fact, the Central Hall in Parliament House is a place of great historical importance, and the transfer of power on the 15th of August 1947 from British to Indian hands took place in that hall. In fact, the Indian Constitution was also framed in the Central Hall, and today our new president, the 14th president of the nation, Shri Kovind, will be sworn in there. इतिहास के पन्ने इसी तरह एक एक करके जुड़ते जाते हैं। एक नया अध्याय आज उसमें जुड़ता हुआ। गौरव, नई शुरुआत जो प्रणब मुखर्जी ने राष्ट्रपति रहते हुए जो की, कि तब तक राष्ट्रपति के लिए महामहिम शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, जो उन्होंने परंपरा बदलकर फिर उसको माननीय उन्होंने तब्दील किया। Right, and that was the most beautiful part of the president's tenure. He was a president, but also understood the institution and beautifully understood the current context of how the world is changing and so many things need to change. And here we're giving you a long shot of the limousine along with the president's bodyguard going into the gate at Parliament House. काफिला संसद भवन के द्वार से आगे बढ़ता हुआ In fact, quotations have a beautiful way of conveying a lot in very, very simple words. And at the Central Hall of Parliament House, this is right at the top of the entrance of that hall, there is a beautiful quotation which says, and it's in Sanskrit, the English meaning is, that one is mine and the other a stranger is the concept of little minds. But to the large-hearted, the world itself is their family. This truly epitomizes what India has always stood for. दिल्ली में वैसी भी हरियाली काफी है और इन दिनों मौसम के हिसाब से देखें तो हमारे इन तमाम दृश्यों में आप हरे भरे घने वृक्षों को भी देख सकते हैं इस लोकतंत्र के मंदिर के साथ। And here arriving at the entrance of the Central Hall, the president's bodyguard is escorting the presidential limousine. మరికొద్దిసేపట్లో దేశానికి 14వ రాష్ట్రపతిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయబోతున్నారు రామ్నాథ్ కోవింద్. ప్రస్తుత రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ ముఖర్జీతో కలిసి ఆయన పార్లమెంటు సెంట్రల్ హాల్కి ఇప్పుడే చేరుకున్నారు. మరికొద్దిసేపట్లో ఆయన పార్లమెంటు సెంట్రల్ హాల్లోకి వెళతారు. దేశ 14వ రాష్ట్రపతిగా రామ్నాథ్ కోవింద్ ప్రమాణ స్వీకారానికి అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయి. రామ్నాథ్ కోవింద్ 1945 అక్టోబర్ 1న ఉత్తరప్రదేశ్లో జన్మించారు. ఆయన రాష్ట్రపతికి పోటీ చేసే వరకు బీహార్ గవర్నర్గా ఉన్నారు. మొదటి నుంచి బీజేపీలో చాలా కీలక ప్రస్థానమైంది. లాయర్గా, రాజ్యాంగ కోవిదుడుగా, అలాగే ఒక దళిత మేధావిగా రామ్నాథ్ కోవింద్కు చాలా ఖ్యాతి ఉంది. రాష్ట్రపతిగా
పోటీ చేసే ముందు బీహార్ గవర్నర్గా ఆయన ఉన్నారు. అంతకుముందు 2 సార్లు బీజేపీ నుంచి రాజ్యసభ సభ్యుడిగా 1994 నుంచి 2006 వరకు ఆయన రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఉన్నారు. ప్రస్తుతం రామ్నాథ్ కోవింద్ పార్లమెంటు సెంట్రల్ హాల్కి చేరుకున్నారు. ప్రణబ్ ముఖర్జీ కూడా వారు అక్కడికి వచ్చారు. ఇప్పటికే అక్కడికి ప్రధాని, కేంద్ర మంత్రులు, ఉపరాష్ట్రపతి, ఇతర ఎంపీలంతా కూడా చేరుకున్నారు. రామ్నాథ్ కోవింద్తో చీఫ్ జస్టిస్ కర్ణన్ ప్రమాణం చేయిస్తారు. తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులిద్దరూ కూడా రామ్నాథ్ కోవింద్ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి హాజరవుతున్నారు. और संसद भवन परिसर में प्रवेश करते हुए साथ में हैं भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जगदीश सिंह खेहर अगवानी करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की। और यहां से सीधे संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में पहुंचेंगे। पूरे सम्मान के साथ राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में जाते हुए बतौर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का ये आखिरी प्रवेश संसद भवन में 14वें राष्ट्रपति के रूप में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शपथ ग्रहण करेंगे और उसके बाद भारत के राष्ट्रपति के रूप में अगले 5 सालों तक अपनी सेवाएं रामनाथ कोविंद देंगे। निश्चित रूप से इन तमाम सारे पलों को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपनी सुनहरी यादों के साथ यहां से विदा होंगे। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, भारत के उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को पूरे सम्मान के साथ संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में ले जाते हुए साथ में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी हैं। तो अब से कुछ ही देर में संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में शपथ ग्रहण समारोह होगा और इस गरिमामय समारोह के साक्षी आप और हम मिलकर होंगे। तुरही बजाकर यह संदेश संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में दिया गया है कि अब राष्ट्रपति संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं, लिहाजा उनके सम्मान में संसद भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में मौजूद प्रधानमंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भवन परिसर के केंद्रीय कक्ष में प्रवेश करते हुए राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। महामहिम राष्ट्रपति जी,
सब जय गाता मान्यवर, आदेश हो तो निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्वाचित राष्ट्रपति की घोषणा को पढ़ा जाए। यतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 द्वारा भारत के राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग में निहित है और यतः श्री प्रणब मुखर्जी की पदावधि की समाप्ति वर्ष 2017 के जुलाई मास के 24वें दिन तदनुसार शक संवत 1939 के श्रावण मास के दूसरे दिन होनी है और यतः भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए संविधान तथा राष्ट्रीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 के प्रावधानों और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों के अनुसार करा लिया गया है तथा इसका परिणाम घोषित कर दिया गया है। अतः अब भारत निर्वाचन आयोग ये प्रमाणित करता है कि वर्ष 2017 के जुलाई मास में के 20वें दिन तदनुसार शक संवत 1939 के आषाढ़ मास में के 29वें दिन को श्री रामनाथ जी कोविंद भारत के राष्ट्रपति पद के लिए विधिवत रूप से निर्वाचित हो गए हैं। भारत गणराज्य के 68वें वर्ष में हमारे हस्ताक्षर और भारत निर्वाचन आयोग की मोहर से आज वर्ष 2017 के जुलाई मास के 20वें दिन तदनुसार शक संवत 1939 के आषाढ़ मास के 29वें दिन को जारी किया गया। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। Congratulations. Thank you, sir.
मान्यवर, आपका आदेश हो तो आपके पद ग्रहण की उद्घोषणा की जाए और उसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। इसकी सूचना प्रमुख सेना केंद्रों तथा विदेश स्थित सभी भारतीय मिशनों, राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों को भेजी जाए। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को भी सूचना तथा आवश्यक आदेश जारी करने हेतु भेजा जाए। आदरणीय श्री प्रणब मुखर्जी जी, श्री हामिद अंसारी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्रीमती सुमित्रा महाजन जी, न्यायमूर्ति श्री JS खेहर जी, एक्सेलेंसीज, संसद के सम्मानित सदस्यगण, देवियों, सज्जनों और मेरे देशवासियों, मुझे भारत के राष्ट्रपति पद का दायित्व सौंपने के लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं पूरी विनम्रता के साथ इस पद को ग्रहण कर रहा हूं। यहां सेंट्रल हॉल में आकर मेरी कई पुरानी स्मृतियां ताज़ा हो गई हैं। मैं संसद का सदस्य रहा हूं और इसी सेंट्रल हॉल में मैंने आप में से कई लोगों के साथ विचार विनिमय किया है। कई बार हम सहमत होते थे, कई बार असहमत, लेकिन इसके बावजूद हम सभी ने एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना सीखा। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं एक छोटे से गांव में मिट्टी के घर में पला बढ़ा हूं। मेरी यात्रा बहुत लंबी रही है, लेकिन ये यात्रा अकेले सिर्फ मेरी नहीं रही है। हमारे देश और हमारे समाज की भी यही गाथा रही है। हर चुनौती के बावजूद हमारे देश में संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल मंत्र का पालन किया जाता है और मैं इस मूल मंत्र का सदैव पालन करता रहूंगा। मैं इस महान राष्ट्र के 125 करोड़ नागरिकों को नमन करता हूं और उन्होंने मुझ पर जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरने का मैं वचन देता हूं। मुझे इस बात का पूरा एहसास है कि मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और मेरे पूर्ववर्ती श्री प्रणब मुखर्जी, जिन्हें हम स्नेह से प्रणब दा कहते हैं, जैसी विभूतियों के पद चिन्हों पर चलने जा रहा हूं। साथियों, हमारी स्वतंत्रता महात्मा गांधी के नेतृत्व में हजारों स्वतंत्रता सेनानियों के प्रयासों का परिणाम थी। बाद में सरदार पटेल ने हमारे देश का एकीकरण किया। हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हम सभी में मानवीय गरिमा और गणतांत्रिक मूल्यों का संचार किया। वे इस बात से संतुष्ट नहीं थे कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही काफ़ी है। उनके लिए हमारे करोड़ों लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता के लक्ष्य को पाना भी बहुत महत्वपूर्ण था। अब स्वतंत्रता मिले 70 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। हम 21वीं सदी के दूसरे दशक में हैं, वो सदी जिसके बारे में हम सभी को भरोसा है कि ये भारत की सदी होगी। भारत की उपलब्धियां ही इस सदी की दिशा और स्वरूप तय करेंगी। हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो आर्थिक नेतृत्व देने के साथ ही नैतिक आदर्श भी प्रस्तुत करे। हमारे लिए ये दोनों मापदंड कभी अलग नहीं हो सकते। ये दोनों जुड़े हुए हैं और इन्हें हमेशा जुड़े ही रहना होगा। साथियों, देश की सफलता का मंत्र उसकी विविधता है।
विविधता ही हमारा वो आधार है जो हमें अद्वितीय बनाता है। इस देश में हमें राज्यों और क्षेत्रों, पंथों, भाषाओं, संस्कृतियों, जीवन शैलियों जैसी कई बातों का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। हम बहुत अलग हैं, लेकिन फिर भी एक हैं और एकजुट हैं। 21वीं सदी का भारत ऐसा भारत होगा जो हमारे पुरातन मूल्यों के अनुरूप होने के साथ ही साथ चौथी औद्योगिक क्रांति को भी विस्तार देगा। इसमें न कोई विरोधाभास है और न ही किसी तरह के विकल्प का प्रश्न उठता है। हमें अपनी परंपरा और प्रौद्योगिकी, प्राचीन भारत के ज्ञान और समकालीन भारत के विज्ञान को साथ लेकर चलना है। एक तरफ जहां ग्राम पंचायत स्तर पर सामुदायिक भावना से विचार विमर्श करके समस्याओं का निस्तारण होगा, वहीं दूसरी तरफ डिजिटल राष्ट्र हमें विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचने में सहायता करेगा। ये हमारे राष्ट्रीय प्रयासों के दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। राष्ट्र निर्माण अकेले सरकारों द्वारा नहीं किया जाता। सरकार सहायक हो सकती है, वो समाज की उद्यमी और रचनात्मक प्रवृत्तियों को दिशा दिखा सकती है, प्रेरक बन सकती है। राष्ट्र निर्माण का आधार है राष्ट्रीय गौरव। हमें गर्व है भारत की मिट्टी और पानी पर। हमें गर्व है भारत की विविधता, सर्वधर्म समभाव और समावेशी विचारधारा पर। हमें गर्व है भारत की संस्कृति, परंपरा एवं अध्यात्म पर। हमें गर्व है देश के प्रत्येक नागरिक पर। हमें गर्व है अपने कर्तव्यों के निर्वहन पर और हमें गर्व है हर छोटे से छोटे काम पर जो हम प्रतिदिन करते हैं। साथियों, देश का हर नागरिक राष्ट्र निर्माता है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति भारतीय परंपराओं और मूल्यों का संरक्षक है और यही विरासत हम आने वाली पीढ़ियों को देकर जाएंगे। देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले और हमें सुरक्षित रखने वाले सशस्त्र बल राष्ट्र निर्माता हैं। जो पुलिस और अर्धसैनिक बल आतंकवाद और अपराधों से लड़ रहे हैं, वो राष्ट्र निर्माता है। जो किसान तपती धूप में देश के लोगों के लिए अन्न उपजा रहा है, वो राष्ट्र निर्माता है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि खेत में कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं भी काम करती हैं। जो वैज्ञानिक 24 घंटे अथक परिश्रम कर रहा है, भारतीय अंतरिक्ष मिशन को मंगल तक ले जा रहा है या किसी वैक्सीन का आविष्कार कर रहा है, वो राष्ट्र निर्माता है। जो नर्स या डॉक्टर सुदूर किसी गांव में किसी मरीज की गंभीर बीमारी से लड़ने में उसकी मदद कर रहे हैं, वो राष्ट्र निर्माता है। जिस नौजवान ने अपना स्टार्टअप शुरू किया है और अब स्वयं रोजगारदाता बन गया है, वो राष्ट्र निर्माता है। ये स्टार्टअप कुछ भी हो सकता है। किसी छोटे से खेत में आम से अचार बनाने का काम हो, कारीगरों के किसी गांव में कारपेट बुनने का काम हो या फिर कोई लेबोरेटरी जिसे बड़ी स्क्रीनों से रोशन किया गया हो। वो आदिवासी और सामान्य नागरिक जो जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में हमारे पर्यावरण, हमारे वनों, हमारे वन्य जीवन की रक्षा कर रहे हैं। और वे लोग जो नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, वे राष्ट्र निर्माता हैं। वो प्रतिबद्ध लोक सेवक जो पूरी निष्ठा के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, कहीं पानी से भरी सड़क पर ट्रैफिक को नियंत्रित कर रहे हैं, कहीं किसी कमरे में बैठकर फाइलों पर काम कर रहे हैं, वे राष्ट्र निर्माता हैं। वे शिक्षक जो निस्वार्थ भाव से युवाओं को दिशा दे रहे हैं, उनका भविष्य तय कर रहे हैं, वो राष्ट्र निर्माता है। वे अनगिनत महिलाएं जो घर पर और बाहर तमाम दायित्व निभाने के साथ ही अपने परिवार की देख रेख कर रही हैं, अपने बच्चों को देश का आदर्श नागरिक बना रही हैं, वे राष्ट्र निर्माता हैं। साथियों, देश के नागरिक ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। उन प्रतिनिधियों में अपनी आस्था और उम्मीद जताते हैं। नागरिकों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए यही जनप्रतिनिधि अपना जीवन राष्ट्र की सेवा में लगाते हैं। लेकिन हमारे ये प्रयास सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है। सदियों से भारत ने वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के दर्शन पर भरोसा किया है। ये उचित होगा कि अब भगवान बुद्ध की ये धरती शांति की स्थापना
और पर्यावरण का संतुलन बनाने में विश्व का नेतृत्व करे। आज पूरे विश्व में भारत के दृष्टिकोण का महत्व है। पूरा विश्व भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं की तरफ आकर्षित है। विश्व समुदाय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए हमारी तरफ देख रहा है, चाहे आतंकवाद हो, काले धन का लेन देन हो या फिर जलवायु परिवर्तन। वैश्विक परिदृश्य में हमारी जिम्मेदारियां भी वैश्विक हो गई हैं। यही भाव हमें हमारे वैश्विक परिवार से, विदेश में रहने वाले मित्रों और सहयोगियों से, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में रहकर अपना योगदान दे रहे प्रवासी भारतीयों से जोड़ता है। यही भाव हमें दूसरे देशों की सहायता के लिए तत्पर करता है, चाहे वे अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का विस्तार करना हो या फिर प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले सहयोग के लिए आगे आना हो। एक राष्ट्र के तौर पर हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन इससे भी और अधिक ज़्यादा करने का प्रयास और बेहतर करने का प्रयास और तेज़ी से करने का प्रयास निरंतर होते रहना चाहिए। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्ष 2022 में देश अपनी स्वतंत्रता के 75वें साल का पर्व मना रहा होगा। हमें इस बात का लगातार ध्यान रखना होगा कि हमारे प्रयास से समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति के लिए और गरीब परिवार की उस आखिरी बेटी के लिए भी नई संभावनाएं और नए अवसरों के द्वार खुलें। हमारे प्रयत्न आखिरी गांव के आखिरी घर तक पहुंचने चाहिए। इसमें न्याय प्रणाली के हर स्तर पर तेजी के साथ कम खर्च पर न्याय दिलाने वाली व्यवस्था को भी शामिल किया जाना चाहिए। साथियों, इस देश के नागरिक ही हमारी ऊर्जा का मूल स्रोत हैं। मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ कि राष्ट्र की सेवा के लिए मुझे इन लोगों से इसी प्रकार निरंतर शक्ति मिलती रहेगी। हमें तेजी से विकसित होने वाली एक मजबूत अर्थव्यवस्था, एक शिक्षित, नैतिक और साझा समुदाय, समान मूल्यों वाले और समान अवसर देने वाले समाज का निर्माण करना होगा। एक ऐसा समाज जिसकी कल्पना महात्मा गांधी और दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी। ये हमारे मानवीय मूल्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये हमारे सपनों का भारत होगा, एक ऐसा भारत जो सभी को समान अवसर सुनिश्चित करेगा। ऐसा ही भारत 21वीं सदी का भारत होगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।